we are doing this chapter periodic classification of elements और इसमें सबसे important topic जो था periodic बताया आपको which repeats after regular interval. Classification means grouping. So grouping of elements on the basis of their similarities and dissimilarities. So periodic classification और periodic classification में सबसे पहले जो था that was given by Duvernier. Dubernier's triad. Duvernier triad में क्या था? He arranged the elements on the basis of their increasing atomic masses such that the mean of atomic mass of the first and last element is approximately equal to the atomic weight of middle element. I'm repeating. He arranged the elements on the basis of increasing atomic masses such that the mean of atomic weight of first and last element. He arranged the elements on the basis of increasing atomic masses such that the mean of atomic weight of first and last element is approximately equal to the atomic weight of middle element. But he could find only three triads: lithium, sodium, potassium, chlorine, bromine, iodine, calcium, strontium, barium. These were the three triads he was able to find on the basis of this system, that if we arrange the elements on the basis of increasing atomic masses, अगर आप तीन एलिमेंट्स ट्राइड बनाते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का मीन है लिथियम और पोटेशियम, क्लोरीन और आयोडीन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट. So this is how he calculated the atomic weight of middle element. But he was able to find only three triads, that means only 9 elements. He was not able to adjust other elements. That is why this classification system was not accepted. Later on, after this Duvernier, Newland law of octaves. Newland, he arranged the elements on the basis of increasing atomic masses. Again, he used this property only. He arranged the elements on the basis of increasing atomic masses such that the property of first and eighth element, they are same as in a musical note. As in a musical note, the first and eighth note, they are same. Okay, as in a musical note, first and eighth note, they are same. Similarly, if we arrange the Newland, he arranged the elements on the basis of increasing atomic masses such that the property of first and eighth element, they are same as in a musical note. But this law was applicable till calcium only. Limitations थी इसमें. As he arranged on the basis of increasing atomic masses, this law was applicable only up till calcium, whose number is 40. He could arrange only 56 elements in the table. He arranged dissimilar elements in the same slot, and similar elements were widely separated. Unknowable gases were not known at that time. This is applicable only for lighter elements, this classification system. And you know, there are many heavy elements, so this table was not able to accommodate all the heavy elements. So this law was applicable only for lighter elements. I hope Newland of octaves सबको clear हो चुका है. I'm repeating for everyone. Newland law of octaves states that if we arrange elements on the basis of increasing atomic masses such that the property of first and eighth element, they are same as in a musical note, ऐसे ही सेकेंड और नाइन्थ की सेम हो जाएगी, थर्ड और टेंथ की. आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. जैसे सारे गामा पादा नी फिर सा, सारे गामा पादा नी फिर सा. दिस इज हाउ first and eighth note are same. Similarly, first and eighth element, they are same. The limitation इसकी ये थी, this law was applicable only up till calcium. calcium तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसने फिर भी 56 elements, calcium का नंबर है 40, but he was able to arrange 56 elements in his periodic table.
गलती क्या की, दो डिसिमिलर एलिमेंट्स निकल एंड कोबाल्ट, दे वर प्लेस्ड इन द सेम ब्लॉक, और एक एलिमेंट से एक ब्लॉक में ज्यादा नहीं आना चाहिए. ही प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन द सेम ब्लॉक. दिस वाज रॉन्ग. सिमिलर एलिमेंट्स वर वाइडली सेपरेटेड. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स से क्लोरीन को आयोडीन से बहुत दूर कर दिया गया. दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो दैट इज व्हाई दिस लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स. जितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट. यस, राजवीर, आयुष, भावेश, दमन, हरमन, हर्षित, करमन, वरुण, करण, रेज योर हैंड बेटे. ओके. यस दमन. ओके. हरमन, करमन, करण. ओके हरमन, ठीक है बेटे. करमन, करण, रेज योर हैंड बेटे. यस राजवीर, करमन, करण. I hope everyone is clear with this topic. Now I'm going to start with the next part, that is Mendeleev periodic table. Got it, Herman? Mendeleev periodic table. Mendeleev's periodic table या periodic law. Law आप लोगों को बता दिया था. कोई चीज लॉ तब बनता है जब उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हों. तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको सेम याद करनी है. इट स्टेट्स दैट the properties of elements, it is given in your NCERT in inverted commas, properties of elements are periodic function of atomic masses. Exactly यही लर्न करना है. The properties of elements are periodic function of atomic masses. Again सिर्फ इसकी एक कमी रही, he used atomic masses. अब हम मॉडर्न टेबल आज पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा. He used this term atomic masses. Now coming to properties, properties of elements are periodic function of atomic masses. प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज थी? बोथ केमिकल एंड फिजिकल. तो कई किताबों में ये भी दिया हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. और कई किताबों में सिंपल दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. तो ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. इसके कुछ अचीवमेंट्स थी. मेंडलीव बहुत ज्यादा समझदार था, इसकी वजह से इसने अचीवमेंट्स कुछ दी. ही प्लेस he found some elements. He left gaps in his periodic table for the elements which were not discovered at that time, and later on when these elements were discovered, they were found to have same properties as given by, as suggested by Mendeleev. तो उसने तीन एलिमेंट्स थे, एका बोरोन, एका संस्कृत वर्ड है, एका मीन्स बिफोर, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम. इनके सॉरी, बोरोन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के पहले इसने एक गैप छोड़ दिया. बोरोन से पहले आया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. So later on these were given different names by different scientists. Scandium Scandinavian country की वजह से, गैलियम ये बच्चे, ये साइंटिस्ट जर्मेनियम, these names were given by the scientists but they were having the same properties as suggested by Mendeleev. So this was the major achievement of Mendeleev periodic table. He left the gaps of few elements which were unknown at that time, and later on when these were discovered, they were found to be having the same properties as suggested by Mendeleev. Eka boron, eka aluminium, eka boron, eka aluminium, eka silicon. इनके आगे जो नाम थे, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये सब आप लिख चुके हो. इसमें इसकी कमी क्या रही, लिमिटेशंस कह दो या फिर ड्रॉबैक्स कह दो, ये हम पहले लास्ट क्लास में कर चुके हैं. आई थिंक सभी को समझ भी आ रहा है. लिमिटेशन सबसे पहली इसकी ये थी कि ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. सबसे पहली कमी इसकी ये थी कि एज ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस,
तो आइसोटोप्स जो थे उनको प्लेस करना मुश्किल हो गया, बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses. As hydrogen has 3 isotopes, atomic number is same but mass number is different. Chlorine has 2 isotopes, दोनों का atomic number same है, atomic mass एक का 35 है, एक का 37 है. According to Mendeleev, as they were arranged on the basis of increasing atomic mass, hydrogen should be placed at 3 places. तीनों का atomic mass different है, 1, 2 और 3 according to Mendeleev. क्योंकि उसने कहा कि आपने एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो पहले प्रोटियम आना चाहिए, इसका नाम प्रोटियम बोलते हैं, जिसमें 1 1 हो, इसमें 2 है डिटीरियम, जिसमें ट्रीटियम. This deuterium is a heavy isotope of hydrogen. It is used as nuclear fuel. It is also used in as a propellant in rockets. Rocket में जो fuel hydrogen gas डाली जाती है, अगर किसी को पता है पूछते हैं कि rocket में क्या डालते हैं, रॉकेट में पेट्रोल है या डीजल है या क्या है, तो इट इज ड्यूटीरियम, इट इज दिस हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इतनी बम्बार्डमेंट होती है, इतनी ज़्यादा रिएक्शन होती है और वो बहुत और इतनी फोर्स प्रोड्यूस होती है कि वो ऊपर चला जाता है. बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अब मेंडलीव ने बोला कि एटॉमिक मास पे रखोगे तो हाइड्रोजन 3 जगह आएगा, क्लोरीन 2 जगह आएगा, एंड देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट एक से ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. इतना बल्कि ग्रुप हो गया, इतना बल्कि टेबल हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह ली हर एक एलिमेंट ने, तो टेबल बहुत ज़्यादा हैफजर्ड हो गया. इट वॉज नॉट ईजी टू compile all the elements in a single table. That is why this is not applicable for isotope. Second was the position of hydrogen. अभी आपने देखा हाइड्रोजन it requires 3 position. But this protium 1 1 can behave as metal और नॉन मेटल. हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है. मेटल वो होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल होते हैं जो गेन कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन के पास 1 है, या तो ये 1 लूज कर देगा या फिर 1 गेन करेगा. लूज करता है तो +1, गेन करता है तो -1. +1 है तो मेटल है, -1 है तो नॉन मेटल है. तो इट इज प्योर मेटल एज वेल एज प्योर नॉन मेटल. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इसको मेटलॉइड बोल दो, बीच में है. नो, इट इज नॉट इन बिटवीन, इट इज प्योर मेटल एज वेल एज प्योर नॉन मेटल. The position of hydrogen is still not valid. Again, he was not able to find the positioning of heavy metal transition elements. कुछ ऐसे elements हैं in between. अभी हम पढ़ेंगे transition elements या transition metals which have been given separate place in the modern periodic table. तो he was not able to explain them. इसने सबसे अच्छा काम जो achievement में, एक और काम था achievements में, जो इसने periods और ग्रुप्स, 7 ही periods है, 7 ही ग्रुप्स थे. तो he arranged the elements into periods and groups. ओके, तो ये चीज़ इसकी अच्छी थी कि इसने sophisticatedly बताया कि एक तो कुछ 3 एलिमेंट्स डिस्कवर किया और उसने बता दिया कि एलिमेंट्स शुड बी प्लेस्ड इन दिस मैनर, एक हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड्स. तो इसीलिए ये भी सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी ये थी कि इसने इसको सिंप्लीफाई करवाया. कितने बच्चों को मेंडलीव के बारे में समझ आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड, देन ओनली विल प्रोसीड. If any one of you have a question, just ask me. Don't hesitate. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ने अपना ध्यान इधर रखना है. किसी ने कोई किसी की तरफ नहीं देखना, टीवी नहीं है, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, because I'm going to ask the questions also. Yes, मुस्कान, बेटे किसी ने कुछ भी पूछना है, you are free to ask. Now coming to modern periodic table, पहले आप सुनोगे फिर इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जिसको समझ आ गया अपने आप फिर आंसर्स आप दोगे, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. कई बार 5 मार्क क्वेश्चन सिर्फ इसी में से आता है और सीधा 5 मार्क 0 हो जाएंगे अगर नहीं समझ आए. समझ आ गया तो बहुत इजी है सबके लिए.
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो ये दिया किसने? हेनरी मोजली। हेनरी मोजली। तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो इसके बारे में ही नहीं पता होता है। हेनरी मोजली, दिस इज गिवन on the first page of periodic table, modern periodic table. He gave this concept of modern periodic table, and modern periodic law states that पूरी वही मेंडलीव की statement, properties same of elements, which properties, physical and chemical, are periodic function of atomic number. इसने सबसे बड़ी अचीवमेंट ये की, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जिसको ये स्टेटमेंट लर्न हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न हो गया, स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडली पीरियोडिक लॉ, दोनों की स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एंड में एक में मासेस है, एक में नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दिस वाज गिवन बाय हेनरी मोजली। हेनरी मोजली अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप की प्रॉब्लम खत्म। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की, क्योंकि जिसको नहीं समझ आया वो इधर ध्यान से देखो। आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजली it should be placed in one position क्योंकि atomic number is 1. Chlorine atomic number is same 17, atomic mass is different, तो इसके लिए hydrogen chlorine should be placed in position 17. This problem was solved as it was based on atomic number. This was the major achievement क्योंकि अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे थे सारे साइंटिस्ट डिस्ट्रैक्टेड थे। जितने भी साइंटिस्ट थे वो इस चीज से डिस्ट्रैक्टेड थे। as he arranged the elements on the basis of atomic number. Okay, thank you. He arranged the elements on the basis of atomic number. So इसकी सबसे बड़ी मेजर अचीवमेंट ही ये थी क्योंकि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ रहे थे और उन्होंने जो अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। So this was the major achievement of Henry Moseley, that he arranged the elements on the basis of increasing atomic number. बाकी कोई भी साइंटिस्ट इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि अभी तक हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एटॉमिक मास के बेसिस में यूज कर रहे हैं। और एटॉमिक मास में गलती ये हुई थी जैसे आयोडीन का था 126 और एक और क्रिप्टन का था 128, तो आपस में वही उनका ही नहीं समझ आ रहा था, किसी ने क्रिप्टन को आगे कर दिया आयोडीन को पीछे, तो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर ने सबसे मेजर इसको सॉल्व किया। Now I'm going to tell you about the features of modern periodic table. प्यारे बच्चों, आपने अपनी पूरी कंसंट्रेशन स्क्रीन पे रखनी है क्योंकि कुछ भी चीज मिस हुई आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। और अगर समझ आ गया, बिलीव मी, इस चैप्टर में कुछ लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ यही पढ़ना था आपको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज, और मैंने आपको अभी क्लास में लर्न भी करवा देना है चैप्टर एटॉमिक नंबर, सॉरी नेम्स, ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो अभी लर्न भी हो जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, जब आप क्लास में बैठते हो तो दो आता है, एक दो रोज आती हैं, एक कॉलम्स एक ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम and periods are called as horizontal rows. अब रोज में अब ये जो रोज थी वो थी 7 एंड ग्रुप्स जो थे दे वर 18। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड।
ये बहुत सारे हैं, अभी आई एम नॉट गोइंग टू मेक ऑल, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे पैटर्न पे। तो सबसे पहला हेनरी मॉजली ने डिवाइडेड दी टेबल इनटू टू पार्ट्स, ग्रुप्स एंड रोज, या पीरियड्स एंड रोज, पीरियड्स एंड ग्रुप। पीरियड की डेफिनेशन पूछा जाती है तो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रोज। ग्रुप की पूछी जाती है वर्टिकल कॉलम। देयर आर 18 कॉलम्स, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब जब आप क्लास में बैठते हो तो सपोज दिस इज द बोर्ड एंड आई एम राइटिंग हियर एंड यू आर सिटिंग इन दिस ग्रुप। जब आप ग्रुप में बैठोगे तो सबसे छोटा जो बच्चा है, जो जिसकी हाइट छोटी है, वो सबसे आगे होगा, सबसे बड़ी हाइट वाला टॉप पे। तो अब हम इस टेबल को अपोजिट लेते हैं। आई एम, यस भावेश, पूछना बेटे कुछ? नो मैम, गलती से हो गया। भविष आप ध्यान देना बेटे, मैंने आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने हैं आज। शिवालिकियंस, जितने भी बच्चे शिवालिक हैं ध्यान से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछने। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि जब हम ग्रुप में, अब सपोज बोर्ड इज है, सॉरी वो अपोजिट उसमें लेते हैं, तो साइज जो है सबसे छोटा इधर होगा, फिर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। On moving down the group, the size increases. Why it increases? Because there is increase in number of shell. यहाँ 2 shells आ गई, यहाँ 3 shells आ गई, यहाँ 4 shells आ गई। क्वेश्चन आता है why यहाँ 5 shells आ गई। क्वेश्चन आता है why size increases as we move down the group? Because of increase in number of shells. एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना राजवी। व्हाट इज एटॉमिक साइज? द साइज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनो भूमि, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक साइज, विच इज ऑल्सो नोन एज रेडियस। तो एटॉमिक साइज की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, व्हाट इज एटॉमिक साइज? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रेडियस भी बोलेंगे, क्योंकि ये होता है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपने बोल दिया साइज, साइज को हमने बोल दिया रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस पूछा जाए, एटॉमिक साइज पूछा जाए, एक ही बात है। एटॉमिक साइज हमेशा ग्रुप में बढ़ता है, डाउन द ग्रुप। वाइट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। दिख रहा है शेल बढ़ गई, इसमें एक शेल है, इसमें एक शेल थी, दूसरे में 2 शेल्स आ गई, तीसरे में 3 शेल्स, फिर 4 शेल, फिर 5 शेल, ऑब्वियसली साइज इज इंक्रीजिंग। फिर कहते हैं कि साइज डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग द पीरियड। वाइट डिक्रीजेस, इसमें भी 2 ही शेल होंगे, बट साइज इज डिक्रीजिंग। बट वाइट इज डिक्रीजिंग, इसमें 3 शेल्स होंगे। Can anyone have an idea? Tell me why the size is decreasing while moving along a period? Ma'am, number of shells are same. No, because of increase in nuclear charge. बस आपको ये याद करना है बेटे, न्यूक्लियर चार्ज। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनो दिशा, कि why the size decreases as we move along a period? Because of increase in nuclear charge. Size increases as we move down the group, size decreases as we move along the period. Why it increases down the group? Because of increase in number of shell. Why it decreases along a period? Because of increase in nuclear charge. बस इतनी सी चीजें आपको याद करनी। आई गेस सबको समझ आ गया होगा एटॉमिक साइज के बारे में, पीरियड्स एंड यस Can you मुस्कान। please repeat the reason? Why are they decreasing? हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई। Okay. देखो शेल उतनी है, पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी शेल में मतलब बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, और जैसे ही नंबर ज्यादा होते हैं वो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है।
वो न्यूक्लियस की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. दिस इज द रीजन. टेक्निकल टर्म्स में आप सिर्फ आंसर ये दोगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, व्हाई the size of the elements increases as you move down the group. तो आंसर आपको सिर्फ इतना से देना बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, और कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं. तो एटॉमिक साइज की कहानी कितने बच्चों को क्लियर हो चुकी है? दैट as you move down the group, atomic size increases. As you move along a period, atomic size decreases. Raise your hand. Yes, Kanak. Okay, Kumar. Okay, Muskan, Bhumi. Okay. Okay. Now coming to next part. एटॉमिक साइज के बाद आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. सिर्फ समझ लो, नेक्स्ट क्लास में आप लिख लेना, लेकिन पहले आप समझोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा लिखना क्या है. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. ऑल द एलिमेंट्स विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. आप लोग अपनी बुक्स ओपन करोगे, लैपटॉप की फॉर्म में ओपन करोगे, तो आई यूज्ड टू से इन द क्लास कि ओपन योर लैपटॉप्स. आप जब अपनी नोटबुक खोलोगे ना, बुक एनसीईआरटी, उसमें पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर ओपनिंग योर लैपटॉप. All the elements on the left, they are called as metals. All the elements on the right of periodic table, they are called as non-metals. And in between, they are known as metalloids. They are called as metalloids, they are called as semi-metals, they are called as borderline elements. So on. अब देखो दोबारा, आई एम रिपीटिंग. ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट आर नोन एज मेटल्स. दिशा दोबारा से सुनो बेटे, नेटवर्क इशू है दिशा आज. यस मैम. हाँ, तो बच्चे अभी हमने जो एटॉमिक साइज तो आपने कर लिया था, एटॉमिक साइज पे तो थे आप, है ना? एटॉमिक साइज में बता दिया, इट इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेज एज यू मूव अलोंग द पीरियड. क्यों ग्रुप में बढ़ता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल. क्यों पीरियड में डिक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. नहीं समझ आए लिख भी लेना ही, क्योंकि एक बार समझ आ गया आपको, दिमाग में पता चल गया, लिखना बहुत ईजी है. ये चैप्टर बच्चों को समझ ही नहीं आता. फिर हमने पढ़ा ये टेबल. टेबल देखते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए. समटाइम्स इट इज ब्लू, समटाइम्स इट इज येलो और ग्रीन. दे आर शेडेड डिफरेंटली इन योर बुक्स. अगर अभी भी आप बुक ओपन करो, अपने लैपटॉप्स को ओपन करो, बुक में in the form of laptop, page number, I don't remember the page number now. What is the page number for periodic table? मैम 86. Okay, open your laptops for 86 page. You will find different shades. मेटल येलो में है, एक ग्रीन में है. नॉन मेटल्स देख के ही पता चल जाएगा. लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स. देखो कितने मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स होंगे. इधर सारे नॉन मेटल्स हैं. बीच में जो ब्लू कलर लाइंस आएंगी वो दे आर मेटलॉइड्स, है ना? मेटलॉइड्स. तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स. ऑल द मेटल्स दे आर द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन. सबको पता है, मैंने आपको शायद ये बताई भी थी बात, कि जब आप मंदिर में जाते हो वहाँ पे मेटल की घंटी क्यों होती है, या फिर जब हम गुरुद्वारा जाते हैं वहाँ मेटल चैम्बर या मेटल बॉक्स क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन. और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा? अपोजिट प्रॉपर्टी, टू गेन इलेक्ट्रॉन. Metals, they have property to lose electron, and non-metals, they have property to gain electron. अब अगर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पता है ना ये? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे. और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई.
आप, मैंने बताया था मंदिर में आप जाते हो, उदास हो जाते हो तो फिर फ्रेश होके आते हो, मतलब मन हल्का होता है बिकॉज यू गेन दिस पॉजिटिविटी, यू लूज योर इलेक्ट्रॉन. तो all metals they are electropositive. All the elements on the left are electropositive. All the elements on the right are electronegative. तो सबसे पहला आपको प्रॉपर्टी आपने एटॉमिक साइज पढ़ी, दूसरी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल नॉन मेटल की, मेटल ऑन द लेफ्ट एंड नॉन मेटल ऑन द राइट. और फिर उसके बाद आपने ये टॉपिक पढ़ा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. अब कितने बच्चों को ये समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड वंस अगेन कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. शाबाश, वेरी गुड. क्या क्लास है आप लोगों की. राजवी, बच्चे आप, इफ यू आर लिसनिंग टू मी जस्ट रेज योर हैंड. आयुष, आशीष, हर्षित, करण, करमन, पावनी, नवरीत. अब हमने पढ़ा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. पता था आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज दे आर मेटल्स. इसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है ग्रुप, अभी हम पढ़ेंगे क्या है, फिर उसके बाद 13 to 18 ना लगाएंगे. तो अगर हम ये पढ़ें ग्रुप 1 and 2, group 1 elements they are called as alkali metals. Group 1 elements they are called as alkali metals. सिर्फ समझना है आपने, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर समझोगे तो अभी लर्न भी हो जाएंगे. भूमि, बच्चे मुझे सबसे पहला ट्राइड बताओ. डुबर्नियर ने 3 ट्राइड्स दिए थे, फर्स्ट ट्राइड का पूरा नाम, पूरा बताओ एलिमेंट्स कौन से थे. लिथियम का ट्राइड. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. हाँ, अगर आप लोगों को याद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो वही चीज हेनरी मोजले ने इसको यूज किया है. इसी टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. नवरीत, बहुत ध्यान से सुनना, आपने मुझसे बार बार पूछा है कि मैम हाउ टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल चार्ट. तो अगर आप पीरियोडिक में ग्रुप 1 देखते हो तो ग्रुप 1 में पोजीशन हाइड्रोजन को टॉप पे प्लेस किया गया है क्योंकि इट हैज एटॉमिक नंबर 1. फिर उसके बाद वो ट्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबको लर्न हो गया होगा क्योंकि यही दिया था डुबर्नियर ने. फिर उसके बाद आपको याद करना है रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सबको याद होने चाहिए. याद करने का तरीका देख लो. हाइड्रोजन सबको पता है. फिर इसके बाद 3 ट्राइड, जो ट्राइड दिया था डुबर्नियर ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लास्ट 3 लर्न कर लो, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 1 एलिमेंट. क्वेश्चन आता है नेम एनी 3 एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1, और वो तो आपको डुबर्नियर ने ही याद करवा दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. फिर आता है ग्रुप 2, why they are known as alkali metal. क्वेश्चन आता है कि why they are known as alkali metals. The answer is metals को जब हम पानी में डालते हैं, कोई भी मेटल को पानी में डालते हो, वो फॉर्म करती है एल्कली. एल्कली का मतलब क्या है? OH नेगेटिव आयंस. ऑल मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म एल्कली, इसलिए ऐसे मेटल्स को क्या नाम दे दिया? एल्कली मेटल. इन मेटल में किसी को भी पानी में डालोगे तो OH फॉर्म हो. दूसरा ग्रुप बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब ये एल्कली तो समझ आ गया होगा. एल्कली मतलब विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म OH नेगेटिव. एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब फिर से वही, एल्कली बना रहे हैं, पानी में रिएक्ट करते हैं OH, बट अर्थ पे मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, इसीलिए इसको ये नाम दे दिया. अंजलि, मुझे दूसरा ट्राइड बताना, डुबर्नियर ने दिया था. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. बिल्कुल.
तो इसने फिर से अब सेकेंड वाला यूज कर लिया। इसमें पहले था बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर से वही ट्राइड, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फिर आ गया रेडियम। बस, तो ये तो तीन हो गए लर्न, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 and group 2. Group 1 and group 2. Group 1 and group 2. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स किसको लर्न हो चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों को लर्न हो गया ये सिर्फ 5 बच्चों के हाथ रेज हैं, कुंवर, भूमि, अंजलि, मुस्कान, कनक। बाकी जी, ये तो बहुत इजी वे में बताया मैंने आपको। रिया, हरमन, गुरविंदर। और जी देखो, आपको डबर्नियर तो आ ही गया था लर्न। 3 एलिमेंट्स इसके आएंगे, 3 एलिमेंट्स उसके आएंगे। गुड, वरुण, हर्षित, गुरविंदर, वेरी गुड। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट को अगर आप याद करो तो बहुत इजी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को अगर याद करो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। दैट्स इट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो ऐसे ही लर्न हो गए। फिर हम आते हैं ग्रुप 17 पे। यहाँ पे आता है 13, 14, 15, 16, 17 आपको लर्न करना है। 17 में फिर से अब डुबर्नियर का थर्ड ट्रायड था। मुस्कान, कैन यू टेल मी थर्ड ट्रायड ऑफ डुबर्नियर? बोलो बेटे। मुस्कान, मुस्कान, व्हाट वाज द थर्ड ट्रायड ऑफ डुबर्नियर? पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, थर्ड क्या था? हम क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो थर्ड ट्रायड यहाँ पे हो गया लर्न। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। दैट्स इट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। ग्रुप 17 लर्न हो गया। तो डुबर्नियर ने 3 तो ग्रुप्स आपको लर्न भी करवा दिए इसमें से। फिर 18th ग्रुप तो और भी इजी है, ये सिर्फ नोबल गैसेस थे। इसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये आ गए आपकी नोबल गैसेस। व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। नोबल पता है किसको बोलते हैं? जो संत होते हैं ना, वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, शांत रहते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा पॉजिटिव होगे तो आप भक्ति करते रहोगे, अगर ज्यादा नेगेटिव होगे तो टेररिस्ट बन जाओगे। अगर दोनों ही आपके नॉर्मल है, न्यूट्रल हो, तो आप नोबल हो। तो noble gases, they do not react, that is why they stay inert. Inert मतलब they do not react. तो ये 4 ग्रुप्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहला ग्रुप है एल्कली मेटल्स, दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, 17th ग्रुप को बोलते हैं हेलोजेंस। व्हाई इट इज नोन एज हेलोजन? बहुत बार बताया हुआ आपको, बताओ। बिकॉज, शाबाश, सबको आता है। हेलो मीन्स, हेलो मीन्स
सॉल्ट जन मीन्स फॉर्मिंग, बताया हुआ है बेटे, आपको सबको बताया हुआ है। हेलोजेंस क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग। क्लोरीन जो है नमक में मिलता है, तभी इसको बोलते हैं हेलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग। और लास्ट वाले को बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। क्वेश्चन में सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ हेलोजेंस, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ग्रुप 18, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 2, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जिस मर्जी तरीके से आए, आप लोगों के पास आंसर आ गया। गिव 2 एलिमेंट्स विच आर सिमिलर टू बेरिलियम, बेरिलियम के जैसे जैसे बाकी 2 एलिमेंट्स का नाम बताओ, आप लिख दोगे, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ओके, तो कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? और चारों ग्रुप समझ आ चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। अच्छा, रेज करो हैंड फटाफट से, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। टेबल समझोगे तभी आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं समझ आएगा आस्क मी अगेन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बहुत मेहनत की गई। ग्रुप 1 को अलग किया गया, ग्रुप 2 को, एंड ही वाज वेरी स्मार्ट, ही यूज्ड द बर्नियर ट्रायड। सबसे पहले साइंटिस्ट को भी उसने याद किया और तीनों ट्रायड्स इसमें फिट करके ब्यूटीफुली। ग्रुप 1 में पहला ट्रायड आ गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ग्रुप 2 में सेकंड ट्रायड आ गया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ग्रुप 17 में थर्ड ट्रायड आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देयर वर सम एलिमेंट्स which he was not able to place in this periodic table. उसने इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया। उसने कहा 7 पीरियड्स हैं। यू नो व्हाट आर पीरियड्स? ये पीरियड्स हैं 7 पीरियड्स। एंड ग्रुप, ये लास्ट ग्रुप कितना बनाया मैंने? 18th। तो ही डिवाइडेड मेंडलीव की तरह। मेंडलीव से उसने सीखा था कि पीरियड्स और ग्रुप्स में होना चाहिए, तो ग्रुप लिए उसने 18। मेंडलीव ने सिर्फ 8 ग्रुप्स बनाए थे, इसने 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। Again, a very important question, 18 groups and 7 periods. But there were some elements with which he was not able to place in his periodic table. यहाँ पे इसमें एंड में कुछ गड़बड़ आई, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे, total 28 elements. He was not able to place, so he placed these elements separately below this table. Total 28 elements है, 14 in each row. याद रखना आपने, 14 in each row, total 28 elements. He was not able to accommodate all the elements in this periodic table, so he placed the elements separately in the outside the periodic table. और ऐसे एलिमेंट्स को उसने नाम दे दिया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है बीच में रुकावट। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो हाउ मेनी में 28 इन टोटल, 14 इन ईच रो। ये वाला स्टार्ट होता है लेंथेनम से, ये होता है एक्टिनम से, इसलिए सीरीज का नाम यहाँ पे है लेंथेनम, LA, और एक्टिनम AC। इसलिए इस सीरीज को बोल दिया लेंथेनाइट सीरीज, इसको बोल दिया एक्टिनाइट सीरीज। फिर से सुन लो, देयर वर सम एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Moseley was not able to accommodate these elements in the periodic table, so he placed the elements below the periodic table, below this periodic table. उसने अलग ही निकाल दिया इनको, 14 elements in each row, total 28 elements, and he called them as transition elements. एक लेंथेनम के बाद है लेंथेनाइट सीरीज, एक एक्टिनम के बाद है एक्टिनाइट सीरीज। तो इतना ज्यादा सिस्टमैटिकली इसने काम किया। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज भी आपको दिख गई। एंड देयर वर फ्यू एलिमेंट्स जिसको हमने पढ़ा था, ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स? ना तो ये कंप्लीट मेटल थे, ना ये कंप्लीट नॉन मेटल्स थे, दे वर इन बिटवीन, दे वर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, कुछ आधी प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ नॉन मेटल की। He called them as metalloids, semi-metal, borderline elements.
और ये एलिमेंट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एग्जाम्पल आता है गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम। सिलिकॉन को हम यूज करते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग योर सोलर सेल्स। पूछा जाता है सोलर सेल किसका बना हुआ है, इतना महंगा क्यों है, इतना कॉस्टली क्यों है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज्यादा प्रीशियस क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दीज सेमी मेटल्स which are very precious. They have the properties of both metals and non-metal. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम ये बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए जो आपकी सोलर वॉचेस हैं, कुछ वॉचेस ऐसी होती है जैसे रोलेक्स की हो गई या कोई भी अच्छी कंपनी की, जो बहुत महंगी महंगी क्यों है, लाखों में है। द रीजन इज दे हैव सोलर वॉचेस, दे विल नॉट डाई फॉर एवर, चलती रहेंगी घड़ियां जब तक सूरज है, until and unless you break them. तो वो सोलर वॉचेस, सोलर का फायदा ही यही है कि जो ये एनर्जी है ये कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम ये सारे बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं। इसमें आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। और इसके बाद लास्ट एक टॉपिक मैं आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसमें। ये जो मेटल है एस ब्लॉक, जो सबसे पहले बीच में सिर्फ दो होते हैं, ये दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। दिस, ये जो नीचे आ गए डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ये आता है पी ब्लॉक, ब्लॉक्स दिए हैं नाम। और जो लास्ट में आता है एफ ब्लॉक, जो अलग से दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का था, दैट इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नीचे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। ओके, सो आई गेस सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यस, if you have any question just ask me, बच्चे। any question, any query from anyone's side? Ma'am, can you No, please I'm explain clear. transition elements? Transition elements, elements which are present in the D block। ये S ब्लॉक था, ये P ब्लॉक था, ये D ब्लॉक था, ये F ब्लॉक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो D ब्लॉक में कुछ लेंथेनम और एक्टिनम के बाद एलिमेंट्स थे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, he was not able to accommodate these 28 elements in the table, so he placed these elements separately and are called as F block elements now। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, जिसमें मेटल से बदल गए नॉन मेटल में, बदलाव को बोलते हैं ट्रांजिशन को बोलते हैं, एक बीच में ट्रांजिट स्टेट, कन्वर्जन स्टेट। यस, एनी अदर क्वेश्चन?